Hello and welcome students. In this session, we are going to solve example number 19, which is given on your page number 110. If you don't have material, you can download it from the description box. I have already mentioned this link in the description box. So, we are going to learn and solve example number 19, Arvind Bank Limited. In this example, we need to prepare profit and loss account and balance sheet of banking companies. So Arvind Bank Limited that we are going to learn. So let's first of all read the example and then we are going to solve this example. So Arvind Bank Limited has an authorized capital of 50 lakh comprised of 50,000 shares of 100 each. And this is nothing but authorized capital. So in schedule number 1, we are going to write it. All of which subscribed, but 70% of face value shares are called up. It means that all the authorized capital is not called up, but 70% is called up. So, issued, subscribed, and paid up amount will be different, right? Next, uh, bills amounting rupees 4,09,200 are accepted by banks against security valued 6,20,000 capped with the bank. So this is nothing but 4,09,200 is bills discounted, right? So that will we will write bill discounted. So this will consider as what? Bills for collection, right? So bills for bills for collection. So as and when it comes, we will write it down. So adjustment is not given at the end, but in beginning it is written, right? Depreciation on land and building and furniture is to be provided to the extent of 16,000. So depreciation, so find out land and building and furniture, land and building and furniture. So just I'm taking it, right? Because there is no number here, right? Number दिया नहीं है तो हम लिख नहीं सकते. So depreciation on land and building of furniture provided 16,000 and 7,000 respectively. तो देखो ये कुछ दिया है 6 लाख और 1,04,000, तो बाद में देख लेंगे क्या है. You are required to prepare profit and loss account and balance sheet as on 31st March 2007 from the following figures. So we need to prepare final account, right? So what a particular are given, share capital, fixed deposit, etc., etc., discount allowed, money at call, and short notice, cash on hand. So everything looks fine, right? Statutory reserves, stamps on hand, provident fund contribution, audit fee, director's fee, legal charges, etc., etc., unexpired risks, and nothing is given below. So no additional information. Additional information is given here itself, right? So that we will write it down. So what we need to prepare? We need to prepare profit and loss account and balance sheet. ये दोनों बनाना है. तो मैंने already बना के रखा है balance sheet of Arvind Bank Limited. So I will write Arvind Bank Limited as on 31st March 2007. So whatever. So form A, balance sheet, and you know the balance sheet format. So can Ramu Dhobi bring oranges? So CRDBA, DBO, and CBI is a fraud organization. That's why we can remember, and contingent liability and bills for collection. यू हैव नॉट लर्न, आपको पता नहीं है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, तो मेरा पहला वीडियो देख लेना. इसमें मैंने डिटेल में कैसे याद करते हैं वो दे दिया है. इसमें अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, एंड थर्ड पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? सो प्रॉफिट एंड लॉस वी विल राइट, और एक्सपेंडिचर भी लिखा है, एंड शेड्यूल आई हैव ड्रॉन. तो आप अपने ये वीडियो पॉज करके सब शेड्यूल का आप लिख लो, ताकि मेरे साथ साथ आप एग्जाम्पल को कैलकुलेट कर सको. तो फर्स्ट हम ट्राई करते हैं पहले से ही. सो अरविंद बैंक लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 50 लाख कंप्राइज ऑफ 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच. तो मैं कहाँ लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा कैपिटल में. तो कैपिटल में ऑथोराइज्ड 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 कैपिटल. कैपिटल 50,000 equity shares, so I will write 50,000 equity shares
each of rupees 100. So 50,000 and 20. So 50 lakh and double underline because this is authorized capital. Now we can safely write issued, subscribed and paid up capital. Issued, subscribed and paid up capital. तो how much amount अभी क्या है कि आपके पास टेम्पलेट है तो टेम्पलेट में देख के आप लिख सकते हो। तो इसमें मैं मेरे टेम्पलेट में देख के लिख रहा हूँ, राइट। तो 70% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज कॉल्ड अप। तो 70% और कितना हुआ नहीं, तो 70% ऑफ 50,000, so 35,000, राइट। सो 35,000, तो ये अंडरलाइन कर देते हैं। 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो 35 लाख हमारा ये टोटल आएगा। 35 लाख यू कैन सेफली राइट इट डाउन। नेक्स्ट है bills amount in rupees 4,09,200 are accepted by the banks against security of the value 6,20,000. 4,09,000 is nothing but bills for collection. So bills for collection, here I am writing down 4,09,200. Bills for collection 4,09,200. Right? You got, I think you got the point. Right? यहाँ डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो जब आएगा तब हम वो टिक कर किया है और बाकी कुछ है नहीं, राइट। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम ये पर्टिकुलर देते हैं और ऑलरेडी लैंड एंड बिल्डिंग हमने टिक कर दिया है, राइट। तो शेयर कैपिटल 35 लाख, सो हमने लिख ही दिया है, देखो 35 लाख पहले शेड्यूल में, राइट। देन इट्स अ फिक्स डिपॉजिट, तो शेड्यूल नंबर 3 में आएगा बिकॉज दिस इज डिपॉजिट, राइट। तो डिपॉजिट में लिखो फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट 81 लाख 81,100। तो फिक्स्ड डिपॉजिट, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, राइट। नेक्स्ट करंट अकाउंट, यहाँ ही लिखेंगे करंट अकाउंट, करंट अकाउंट 60 लाख 25,664। After that saving bank account, same saving bank account, saving bank account, so it's a 40 lakh 46,008। तो जितना भी है वो हम लिखेंगे, राइट। ओके, बाद में है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल क्या है, लायबिलिटी है, अदर लायबिलिटी में जाएगा। तो शेड्यूल नंबर 5 में यहाँ लिख दो बिल्स पेएबल, 2 लाख। तो बिल्स पेएबल यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 लाख, राइट। नेक्स्ट ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अगर क्रेडिट है तो अदर लायबिलिटी आएगा, डेबिट है तो अदर एसेट्स आएगा। तो यहाँ लिखता हूँ ब्रांच एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट टोटल 77,788, right? So bond adjustment credit, that's why we are writing in other liability, वरना हम कहाँ लिखते हैं, other assets में, right? Next is bills discounted 29,57,040. So bill discounted is nothing but advance. So schedule number 9 में आएगा, schedule number 9 में लिखो bills discounted, bills discounted. Okay, so 29,57,040, right? हो गया। नेक्स्ट बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक, सो एज इट सजेस्ट बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स कहाँ आएगा, शेड्यूल नंबर 4 में आएगा बोरोइंग्स, राइट। राइट डाउन बोरोइंग्स फ्रॉम
अदर बैंक्स, बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स 5 लाख, बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक 5 लाख आएगा, राइट। देन रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड कहाँ आएगा, रिजर्व में आएगा। सो रिजर्व फंड यहाँ लिख देता हूँ, रिजर्व फंड। अगर स्टैट्यूटरी फंड होता तो अंदर लिख के बात करते, यहाँ तो 4 लाख रुपीस है, तो 4 लाख। ट्रांसफर के लिए कुछ बोला नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा। देन इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट कम्स इन इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 8, राइट। राइट डाउन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, investments, right? So investment is 20 lakh 26,250, right? Investments आ गया, right? आगे क्या है, इन्वेस्टमेंट्स के आगे क्या है, आगे है मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस 1,02,250, राइट। तो ये शेड्यूल नंबर 7 में आएगा, राइट। तो शेड्यूल नंबर 7 ऑफ बैलेंस शीट वाला है, ये रहा मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस। आई एम राइटिंग मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, राइट, 1,02,250। नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। 6 लाख है, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख है, और 6 लाख इज अ कॉस्ट प्राइस एंड 4,10,000 इज अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब ओपनिंग 2007 की ओपनिंग है, और यहाँ डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ये दोनों माइनस कर देंगे, तो बाकी का जो है वो अब तक का डेप्रिसिएशन है, एंड वो हम लिखने जा रहे हैं, राइट। तो ये 1 लाख 6 लाख 4,10,000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमको सिर्फ इतना करना है, तो लैंड एंड बिल्डिंग वाला है तो फिक्स एसेट्स में आएगा, तो फिक्स एसेट्स कहाँ है, शेड्यूल नंबर 10 में, तो 10 निकालो शेड्यूल नंबर 10 में, वहां लैंड एंड बिल्डिंग लिखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग देखो कॉस्ट कितनी दी गई है, 6 लाख, राइट। तो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वे दैट वी आर राइटिंग, राइट। ये तो लिखने का स्टाइल, ये उसका जो बुक वैल्यू नहीं, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है जब हमने खरीदी थी तो कितना था, 6 लाख, राइट। वो अभी का प्राइस कितना दिया है, तो अभी का प्राइस देखो 4,10,000 दिया है, 4,10,000 इज बुक वैल्यू, मतलब हमको लिखना है डेप्रिसिएशन टिल डेट। तो बाकी का जो डेप्रिसिएशन है वो टिल डेट का, मतलब 1,90,000, उसका वैल्यू कितना है, देखो इसका वैल्यू है 4,10,000, तो 4,10,000 माइनस 6 लाख अगर करते हैं तो डेप्रिसिएशन टिल डेट कितना आता है, 1,90,000। मतलब ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारा वैल्यू कितना आता है, 4,10,000। मतलब आप पूछो कि आज इसकी वैल्यू कितनी है, 4,10,000, और हमको बोला गया है कि 16,000 क्या करना है, डेप्रिसिएशन करना है, मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर, डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर, तो हम 16,000 यहाँ लिखेंगे, 16,000, मतलब टोटल 2,06,000 यहाँ से माइनस करेंगे। मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस जब हमने खरीदा था तो अब तक का जो डेप्रिसिएशन है 1,90,000 है, क्योंकि 4,10,000 इज द बुक वैल्यू, और 16,000 अभी बोला गया है, ऊपर देखो पैराग्राफ में बोला गया है कि डेप्रिसिएशन 16,000 है, तो टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट, मतलब ये ईयर एंड के बाद, ईयर एंड तक कितना डेप्रिसिएशन हुआ, 2,06,000। तो बाकी का कितना आता है, सो 3,94,000 रुपीज, वो क्या बोले, वो बैलेंस रहेगा। मतलब आप ऐसा करो कि 4,10,000 में से माइनस अगर 16,000 करते हो तो भी 3,94,000 रहेगा। लेकिन ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की जो मेथड है वो
कॉस्ट प्राइस पे है, मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो लिखना जरूरी हो, एंड डेप्रिसिएशन टिल डेट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर, ताकि जो रीडर है, जो ये अकाउंट्स पढ़ रहा है, ये बैलेंस शीट पढ़ रहा है, तो उसको पता चले कि जो ये लैंड एंड बिल्डिंग है वो खरीदी थी 6 लाख में, और 1,90,000 टिल डेट हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन किया, और इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 16,000। तो हमको एग्जैक्टली पता चलेगा। अगर हम 4,10,000 और 16,000 माइनस करें तो 4,10,000 का डेप्रिसिएशन कितना है और उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, राइट, वो पता नहीं चलेगा। मतलब ये दिस जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट यूजफुल, एंड दैट्स व्हाई बैंक्स एंड ऑल द कंपनीज आर यूजिंग दिस मेथड, राइट, कॉस्ट प्राइस वाली मेथड। अभी जो सेकंड इफेक्ट इसकी देनी बाकी है, और मैं साथ साथ में ले लेता हूं फर्नीचर। जो डेप्रिसिएशन ये 16,000 की इफेक्ट बाकी है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा, राइट, डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, तो ये मैं अभी नहीं ले रहा हूं। बाद में देखो फर्नीचर, फर्नीचर, राइट, फर्नीचर में भी सेम कंडीशन है। फर्नीचर का कॉस्ट वैल्यू कितना है, तो 1,04,000 उसका कॉस्ट वैल्यू लिखेंगे, राइट, और लेस डेप्रिसिएशन टिल डेट, टिल डेट मतलब ओपनिंग डेट तक डेप्रिसिएशन कितना है, तो उसकी वैल्यू अभी कितनी दी है, 73,520 दी है, राइट। तो बाकी का जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है, 30,480 जो डिफरेंस है, तो अब तक का डेप्रिसिएशन है, और अभी हमको बोला गया है कि डेप्रिसिएशन 7,000, तो डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर 7,000, so टोटल 37,480 हमारा डेप्रिसिएशन होगा, और ये इसकी सेकंड इफेक्ट देनी बाकी है। तो 1,04,000 माइनस 37,480 तो आता है 73,520, राइट। और दूसरी तरीके से देखो तो हमारा जो कॉस्ट वैल्यू है 73,520 दिया है ना, माइनस अगर 7,000 करते हो तो भी ये फिगर आ जाती है, राइट। तो हम ऐसे ही लिखेंगे, राइट। अभी इसकी भी इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट देनी बाकी है, तो ये शेड्यूल नंबर कौन सा है, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम लिखेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना देंगे, 60,000 ही देंगे, क्योंकि इस साल का डेप्रिसिएशन 16,000 है। सेकंड है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, depreciation on furniture it is 7,000, so I will write 7,000 here, right। तो ये दोनों depreciation वाला हमने ऑलरेडी लिख दिया है, राइट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि लैंड एंड बिल्डिंग हम कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड कहाँ आएगा, तो शेड्यूल नंबर 6 हमारा कैश इन हैंड वाला ही है, राइट। तो शेड्यूल नंबर 6 कैश इन हैंड ऑलरेडी लिख दिया है, राइट। तो अगर नहीं लिखा है तो आप कैश इन हैंड लिख सकते हैं, राइट। देन डिपॉजिट विथ आरबीआई, डिपॉजिट विथ आरबीआई, तो यहां मैं लिखता हूं डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो शेड्यूल नंबर 6 में ही आएगा। तो 8 लाख है, तो यहां मैं 8 लाख लिख देता हूं, राइट। तो ये डिपॉजिट विथ आरबीआई। नेक्स्ट देखो क्या है, कंटिंजेंसी रिजर्व, तो कंटिंजेंसी रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व, राइट। तो और प्लस है नहीं, इस साल प्लस है नहीं, वरना ये इनर कॉलम में लिख के उसमें प्लस कर देते। तो कंटिंजेंसी रिजर्व, contingency reserve 1,20,000 I will write in outer column, right। then profit and loss account, तो अभी तो ये कंबाइन एग्जांपल है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ आएगा, ये शेड्यूल में आएगा। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड, जो ओपनिंग बैलेंस है तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1,06,640, 1,06,640, ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखना होगा। स्टैट्यूटरी, नेक्स्ट देखो स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो सर रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, तो यहाँ स्टैट्यूटरी रिजर्व मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, ठीक है। इस साल अगर प्रॉफिट हुआ तो उसका एडिशन मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व में क्रेडिट करना पड़ेगा, तो आई विल राइट 1,40,000 इन इनर कॉलम।
और यहाँ जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये स्टैट्यूटरी ट्रांसफर करेंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे और बाकी का क्या करेंगे, बाकी प्लस करके यहाँ लिख देंगे, राइट। देन नेक्स्ट इज लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट तो शेड्यूल नंबर 9 में एडवांस इसमें आएगा, तो यहाँ लिखो शेड्यूल नंबर 9 लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, राइट। तो 1,42,40,000, राइट। 1,42,40,000 इज एडवांसेस, राइट। ये होने के बाद स्टैंप ऑन हैंड, तो स्टैंप एक्सपेंस नहीं है, तो ये स्टैंप तो बचा हुआ है, तो स्टैंप ऑन हैंड बचा हुआ है तो अदर एसेट्स आएगा, तो शेड्यूल नंबर 11 में अदर एसेट्स में यहाँ लिखेंगे स्टैंप ऑन हैंड, स्टैंप ऑन हैंड। अगर स्टैंप एक्सपेंस बोले तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा, यहाँ नहीं है तो 372, राइट, स्टैंप ऑन हैंड। देन सैलरीज है, राइट, तो सैलरीज कितनी है, तो सैलरीज भी कहाँ जाएगी, एक्सपेंस में जाएगी, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखो सैलरी, सैलरीज। तो सैलरीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 83,400 सैलरीज है। पीएफ कंट्रीब्यूशन भी यहाँ जाएगा, पीएफ कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट जो पर्टिकुलर है, पीएफ कंट्रीब्यूशन 20,000, so I will read 20,000 here, right. Commission, exchange and brokerage, right, तो commission, exchange and brokerage is other income, right, तो other income शेड्यूल नंबर 14 में लिखेंगे commission, exchange and brokerage, राइट, तो 2 लाख है, तो अदर इनकम में 2 लाख यहाँ लिखता हूँ, राइट। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट एंड करंट एसेट्स, तो ये इंटरेस्ट एक्सपांडेड मेन है, राइट, तो सॉरी यस, इंटरेस्ट एक्सपांडेड शेड्यूल नंबर 15 में आएगा, राइट। शेड्यूल नंबर 15 में इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड ये मेन एक्सपेंस है, पेड ऑन डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में नहीं देना चाहिए लेकिन यहाँ दिया है तो वी कैन नॉट से नो, राइट, तो शेड्यूल नंबर 15 में वो एक्सपेंस के तौर से आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑडिट फी, ऑडिट फी हमारा एक्सपेंस है, राइट, तो ऑडिट फी शेड्यूल नंबर 16 में लिखते हैं ऑडिट फीस, तो 3,000 है, तो 3,000 यहाँ लिखते हैं। देन डायरेक्टर्स फीस 10,000, ये भी आएगा यहाँ, डायरेक्टर्स fees 10,000, so 10,000 I am writing here only, right. Legal charges भी यहाँ आएगा, right, that you know, legal charges 13,300, right, 13,300। नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्या हुआ, तो ये इंटरेस्ट कौन है, हमारा मेन इनकम है, तो राइट डाउन इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, राइट, और इसमें रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट होगा तो माइनस करेंगे लेकिन है नहीं, तो 5,25,000, राइट, 5,25,000। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्या होता है, तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस में समझा देता हूं कि मान लो कि हमने हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1/4/2020 और ये खत्म कब होगा, 31/3/21 को खत्म होगा, राइट, और मान लो कि हमने 1/1/2000 सॉरी 1/6 या मान लो 1/7/2020 को एक इंश्योरेंस लिया एक साल के लिए, तो ये 36/2021 को एक्सपायर्ड होगा, ये क्योंकि एक साल का होगा और हमारा अकाउंटिंग ईयर तो यहाँ खत्म हो रहा है, तो यहां से यहाँ का जो प्रीमियम है वो क्या होगा, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। मतलब फॉर एग्जांपल हमने टोटल 12,000 अगर प्रीमियम भरा है तो ये 9 मंथ्स है और ये 3 मंथ्स है, तो 9 मंथ्स का 9,000 इधर आएगा, 3 मंथ्स का 3,000 इधर आएगा, तो ये जो अमाउंट है वो है अनएक्सपायर्ड
इंश्योरेंस, राइट। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्या होगा कि इंश्योरेंस पेड इन एडवांस जैसा होगा, तो वो कहाँ आएगा, अदर एसेट्स में। तो अदर एसेट्स का शेड्यूल नंबर कौन सा है हमारा, 11, राइट। तो 11 में लिखिए अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 874 अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, राइट। नेक्स्ट है रेंट टैक्स एंड प्रीमियम। तो रेंट टैक्स एंड प्रीमियम तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, राइट। टैक्स वो नहीं बोला है, तो यहां लिखेंगे रेंट टैक्स एंड प्रीमियम 17,000, तो 17,000 लिख दिया। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, राइट। तो 6306 दिया है, वो लिख दे रहे। प्रिंटिंग स्टेशनरी एंड एडवर्टाइजमेंट, तो वो भी यहाँ आएगा, राइट डाउन प्रिंटिंग स्टेशनरी एंड एडवर्टाइजमेंट, तो 6780, तो ये तो वेरी सिंपल है, राइट। एंड मिसलेनियस रिसिप्ट है, मिसलेनियस रिसिप्ट तो कहाँ आएगा, अदर इनकम में आएगा। तो MISCELLENOUS मिसलेनियस रिसिप्ट, मिसलेनियस रिसिप्ट हमारी अदर इनकम है, तो 20,440, राइट। तो ये हमने कंप्लीटली क्या किया, सब जो आता था वो लिख दिया है, सब वो आता था वो लिख दिया है, राइट। सॉरी, यहाँ एक जो इंफॉर्मेशन लिखनी बाकी गई, वो मैं भूल गया हूं, मैं यहाँ लिख देता हूं। वो है डिपॉजिट विद अदर बैंक, तो बोरोइंग्स में नहीं आएगा, सॉरी, बैलेंस विद अदर बैंक में आएगा, राइट। तो बैलेंस विद अदर बैंक में यहाँ डिपॉजिट विद अदर बैंक जो मैं भूल गया था, मैं 23 लाख जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइट। तो अभी मेरे पास सब जो है वो टोटल मेरे पास है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिख दिया है, राइट। एंड सॉरी, ये भी 73,520 नहीं, लेकिन 66,520 आएगा, 66,520 आएगा, राइट। तो ये लिख दिया है, और बाकी का जो सब है मैं देख लेता हूँ, वो लिख दिया है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, राइट। तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ जो आता था वो सब कुछ अच्छी तरह से लिख दिया है, तो सब कुछ लिख दिया है। और मैं एक ट्विस्ट लाने के लिए ये नोट आप एक्स्ट्रा लिखिए, राइट। तो मैं ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, तो आपकी जो नोटबुक है इसमें लिख दो ये जो एग्जाम्पल लिखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये नहीं है तो अभी मैं क्या करूंगा, शेड्यूल नंबर जो 13, 14 और 15, 16 उसका टोटल कर दूंगा, राइट। और पहले जो एग्जाम्पल गिने थे वैसे ही करेंगे, लेकिन मैं ट्विस्ट लाने के लिए और थोड़ा डिफिकल्ट अगर आता है तो कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए मैंने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ये ऐड कर दी है। तो आप ये लिखना, और उसका भी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं, राइट। तो पहली इंफॉर्मेशन लिख दो, डायरेक्टर्स हैव प्रपोज्ड डिविडेंड एट 1%। तो डायरेक्टर ने 1% डिविडेंड प्रपोज किया है, तो किस पे करना चाहिए, तो मुझे पता है कि वो जो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, मतलब जितने का शेयर सब्सक्राइब किए हैं, पेड अप किए हैं, इस पे होगा। एंड ऑल्सो कंसिडर डिविडेंड टैक्स एट द रेट 17%, डिविडेंड टैक्स भी 17%। तो ये एडजस्टमेंट्स में दिया गया है, तो एडजस्टमेंट ये कंसिडर करेंगे। और टैक्स भी 50% ऑन करंट ईयर प्रॉफिट हमको लेना है। ये दो इंफॉर्मेशन है, राइट। तो ये ऐड कर देते हैं, राइट। तो डायरेक्टर्स हैव प्रपोज डिविडेंड एट 1%, तो 1% किसके होंगे, तो राइट डाउन नोट नंबर जो नेक्स्ट आता है वो नोट लिख दीजिए, राइट। तो नोट नंबर यहाँ 1 ही लिखेंगे, राइट। तो सॉरी, नोट 1 क्या आएगा, नोट 1 तो हमारा कंपलसरी है, वो प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज। अगर कुछ नहीं है तो भी ये नोट यही रखेंगे, राइट। एंड नोट नंबर 2 में लिखेंगे, नोट नंबर 2 में क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रपोज्ड
डिविडेंड, राइट। तो क्या लिखा है? प्रपोज डिविडेंड, राइट डाउन, proposed dividend is 1%. So it will be apply on paid up amount of share capital। मतलब शेयर फोर फीचर अगर है, शेयर फोर फीचर and calls in arrears will not be considered, right, will not be considered। तो ये होगा तो नहीं होगा। तो हमारा देखो कि हमारा देखो शेड्यूल नंबर 1 में, राइट, शेड्यूल नंबर 1 मेरे पास है, इसमें कितनी आउटस्टैंडिंग है? तो 35 लाख है। तो 3 करोड़ 50 लाख है ना, 3 करोड़ 50 लाख, उसका 1% हम करते हैं, 3 करोड़ 50 लाख का 1% करते हैं तो कितना होता है? 35,000। तो होता है 35,000, मतलब 2 जीरो निकालो, राइट, 2 जीरो निकालो तो कितना होता है? सॉरी, ये 35 लाख है, राइट। तो मैं ये चेंज कर देता हूं, राइट। तो 35 लाख, सॉरी 35 लाख, उसका 1%, तो इट कम्स 35,000। तो 35,000 की दो आएगा, राइट। तो देयर विल बी, राइट डाउन, देयर विल बी 2 इफेक्ट्स, राइट। तो प्रपोज डिविडेंड की कौन सी इफेक्ट होगी? फर्स्ट, इन एप्रोप्रिएशन अंडर बैलेंस शीट, राइट, एप्रोप्रिएशन बैलेंस शीट में लिखेंगे। और ये क्या हुआ? सेकंड, सेकंड क्या है कि ये हमको देना पड़ेगा, तो अदर लायबिलिटी में लिखेंगे। तो इन अदर लायबिलिटी, राइट, अदर लायबिलिटी शेड्यूल नंबर 5, शेड्यूल नंबर 5 में लिखते हैं। चलो 35,000। तो बैलेंस शीट जो हमारा फॉर्मेट है, राइट, वो फॉर्मेट में मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो यहाँ प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, तो मैं यहाँ ही डायरेक्ट लिखूंगा 35,000, राइट। तो 35,000 में लिख दिया। और सेकंड इफेक्ट शेड्यूल नंबर 5 में अदर लायबिलिटी में मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोविजन फॉर, और सॉरी, प्रपोज डिविडेंड 35,000, राइट, प्रपोज डिविडेंड 35,000। और बोला है कि प्रपोज डिविडेंड तो किया है, तो उस पे डिविडेंड टैक्स भी 17% भरना पड़ेगा। तो नोट 2 में ही मैं लिख देता हूं साथ में, और अलग से भी आप नोट लिख सकते हो, नोट 3 लिखते हो। चलो नोट 3, नोट नंबर 3, डिविडेंड टैक्स। तो राइट डाउन, डिविडेंड टैक्स टू बी पेड एट द रेट 17%, पर किस पे? ऑन डिविडेंड पेड अमाउंट, राइट, डिविडेंड पेड अमाउंट। तो डिविडेंड ऊपर देखो कितना पे किया है, 35,000 इंटू 17%, 35,000 इंटू 17% करो, कितना होता है? 5950, करेक्ट आंसर, 5950 इज करेक्ट आंसर। तो उसकी भी दो इफेक्ट रहेगी, राइट, उसकी भी दो इफेक्ट रहेगी। कैसी इफेक्ट रहेगी? सेम यहां लिखेंगे, राइट, ये सेम रिपीट कर दो। देयर विल बी टू इफेक्ट इन एप्रोप्रिएशन अंडर द बैलेंस शीट, राइट, बैलेंस शीट के जो अप्रोप्रिएशन है इसमें लिखेंगे। और सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगी? अदर लायबिलिटी में। तो डिविडेंड के साथ डिविडेंड टैक्स भी लिखते हैं, राइट। तो मैं यहाँ जो हमारा फॉर्मेट है पीएनएल अकाउंट का, सॉरी ये पीएनएल अकाउंट आएगा, नॉट बैलेंस शीट, राइट। तो बैलेंस शीट मैंने लिखा है वो गलत लिखा है, तो पीएनएल अकाउंट आएगा, राइट। अगले जो एग्जाम जो मैंने सॉरी प्रपोज डिविडेंड बोला है वो पीएनएल के अंडर में लिखना है, और उसका
यहाँ डिविडेंड टैक्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूं डिविडेंड टैक्स। तो डिविडेंड टैक्स है 5950 और सेकंड इफेक्ट आएगी अदर लाइबिलिटी में शेड्यूल नंबर 5, राइट। तो यहाँ लिख देते हैं डिविडेंड टैक्स 5950। मतलब ये जो मैंने लिखा है नोट में, सेकंड इफेक्ट अंडर एप्रोप्रिएशन, राइट, अंडर एप्रोप्रिएशन बैलेंस शीट नहीं आएगा पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो लिख देना। ये दो इफेक्ट आ गई, राइट। तो पहला जो एडजस्टमेंट्स मैंने बताया है वो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, राइट। अभी प्रोवाइड 50% ऑन करंट ईयर्स प्रॉफिट। तो 50% ऑन करंट ईयर प्रॉफिट कब आएगा? जब हम यहाँ फाइंड करेंगे, अगर प्रॉफिट ऑफ द ईयर जितना यहाँ आएगा तभी हम कर पाएंगे ना, राइट। तो अभी हम ये नहीं कर सकते, राइट। तो हम क्या करेंगे अभी? अभी हम टोटल करेंगे। तो टोटल के लिए ध्यान में रखना कि पहला हम शेड्यूल नंबर 13, 14 एंड 15, 16 क्लोज करेंगे, क्योंकि बाद में ही हमको पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट और लॉस होता है। एंड प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी भी यहाँ आएगा, राइट। तो ये ध्यान रख के कैसे कैसे लर्न करना है, कैसे करना है वो हम सीखते हैं। तो चलो शेड्यूल नंबर 13 एंड 14 का टोटल करते हैं, राइट। शेड्यूल नंबर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है नहीं, 13 का टोटल करो, शेड्यूल नंबर 13 का टोटल। तो यही टोटल है, तो मैं ये राउंड कर देता हूँ, राइट। सेकंड यहाँ टोटल करो कितना आता है शेड्यूल नंबर 14 का, 2,20,440, करेक्ट, राइट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 1,25,000, तो वही आ गया। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ बाकी नहीं है, कुछ बाकी नहीं है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लिख देते हैं। टोटल करके देखो, टोटल करके देखो कितना आता है। तो इट्स ए 1,83,686 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चार टोटल कर देना है। और प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज में हम वो टैक्स वाला लिखेंगे, राइट। टैक्स लायबिलिटी और टैक्स प्रोविजन हम यहाँ लिखेंगे, राइट। तो कैसे लिखते हैं? तो ये चार का हमको क्या करेंगे, पहले टोटल जहाँ है वहां लिख देंगे। तो ये टोटल कहाँ लिखेंगे? तो ये रहा पीएनएल स्टेटमेंट, राइट। तो ये ईयर लिख देना। चलो अभी पीएनएल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल नंबर 13 तो कितना है 5,25,000, तो 5,25,000, राइट। शेड्यूल नंबर 14 में अदर इनकम हमने ऑलरेडी देखी है 2,20,440, राइट। तो उसका टोटल करते हैं। टोटल टोटल ये जो है टोटल, राइट, टोटल है 7,45,440, राइट, 7,45,440। तो ये टोटल हो गया। अभी इस इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल नंबर 15 का टोटल, शेड्यूल नंबर 15 का टोटल कितना आता है? तो यहाँ 1,25,000 आता है, 1,25,000। अभी ध्यान रखना, राइट। अभी थोड़ा ट्विस्ट आएगा जो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो ये है 1,83,686, राइट। और प्रोविजन एंड कंटिजेंसी तो पता नहीं है, लेकिन प्रोविजन एंड कंटिजेंसी इंक्लूड अगर एनपीए होता है वो लिखते हैं, और ये जो टैक्स है अमाउंट वो आएगा, राइट। तो मुझे पता नहीं है कि कितना है, लेकिन प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन यहाँ मैंने बोला है 50% ऑफ टैक्स, 50% ऑफ करंट ईयर्स इनकम, राइट। तो हमको करंट ईयर इनकम कहाँ पता है? यहाँ तो नहीं पता है, राइट। और ये टोटल अभी नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज का भी टोटल आएगा, और प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज में क्या आएगा? इनकम टैक्स भी आएगा। इनकम टैक्स कितना है हमें नहीं पता है। तो नोट नंबर 3 और 4 कितना नंबर है? नोट नंबर 4 लिखते हैं, राइट। नोट नंबर 4 राइट डाउन, नोट नंबर 4। तो राइट डाउन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स प्रोविजन, प्रोविजन। तो इनकम टैक्स प्रोविजन करते हैं। तो इनकम टैक्स प्रोविजन कितना करना है? 50%। तो राइट डाउन पहले क्या प्रोविजन लिखा है वो, राइट। इनकम टैक्स प्रोविजन is to be provided at 50% of current year's profit, right, करंट ईयर का प्रॉफिट।
तो हम कैसे करते हैं वो हम मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो फिर से बताता हूँ। तो टोटल ऑफ इनकम शेड्यूल नंबर 13 एंड 14 का, राइट, 13 एंड 14 का टोटल ऑफ इनकम। तो ऑलरेडी हमने 7,45,440 लिख दिया है, राइट, लेस टोटल ऑफ शेड्यूल नंबर 15 एंड 16। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल करो, तो टोटल कितना होता है? तो टोटल देखो, अभी दो दो ही दिख रहा है ना, तो उसका टोटल करो, तो ये आता है 3,08,686 है, राइट। ये हमने किया नहीं, लेकिन अभी टोटल मैंने किया है। तो ये जो अमाउंट आएगी वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी टैक्स हमने कैलकुलेट नहीं किया, अभी तो टैक्स गिनना बाकी है, राइट। तो 4,36,754 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। और यहां अगर होता है तो यहां हम माइनस करेंगे क्या? अगर एनपीए और लेस हम कर सकते हैं, लेस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, तो यहां लिखेंगे बैड डेट्स होता है, बैड डेट्स, तो भी यहां से माइनस करेंगे। रिमेंबर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एंड प्रोविजन फॉर एनपीए भी माइनस करेंगे, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स प्रोविजन भी माइनस करेंगे। ये जो होता है वो हम सब माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, रिमेंबर, राइट। तो ये एनपीए एंड बैड डेट्स जो अगर देते हैं तो ये माइनस करके रखेगा, तो अभी वो नहीं है, राइट, वो नहीं है। तो वो कहां से होगा, पता कब चलेगा कि है? तो ये प्रोविजन यहाँ होगा, तो यहाँ अमाउंट होगा इसका, राइट। हमने प्रोविजन में एनपीए का प्रोविजन हो तो नोट नंबर 1 में यहाँ प्रोविजन लिखते हैं, तो यहाँ नहीं है तो मैंने इसलिए 0 लिखा है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? 4,36,754। अभी टैक्स लिखना है, टैक्स एट द रेट 50%, तो 50% एज्यूम किया है, राइट। 50% नहीं होता है, कम होता है, तो 4,36,754 एट द रेट 50%, तो उसका आता है 2,18,377, 2,18,377, राइट। तो ये जो हुआ ये टैक्सेशन प्रोविजन है, टैक्स प्रोविजन। तो उसके देयर विल बी टू इफेक्ट, राइट डाउन, देयर विल बी टू इफेक्ट्स, टू इफेक्ट्स। द फर्स्ट इफेक्ट है, राइट डाउन, नोट 1 में लिखेंगे। नोट 1 कौन सा है? प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज। एंड सेकंड अदर लायबिलिटी, क्योंकि ये हमको टैक्स पे करना है, अदर लायबिलिटी शेड्यूल नंबर 5 में लिखेंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया। अगर एनपीए एमपीए होता तो नोट 1 में ऑलरेडी होता, तो ये 2,18,377 की दो इफेक्ट, तो ये मैं प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी में लिख देता हूं, इनकम टैक्स प्रोविजन, इनकम टैक्स प्रोविजन, राइट। तो इनकम टैक्स प्रोविजन कितना है? 2,18,377। और सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगी? शेड्यूल नंबर 5 में अदर लायबिलिटी में, यहां लिख देता हूं मैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2,18,377। ये जो मैंने बताया है वो मैक्सिमम है, इतनी सारी एडजस्टमेंट आ सकती है, उसके ज्यादा भी आ सकती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये मैंने दो आपको लिखवा दिया है। अगर ये प्रोविजन हो जाता है, राइट, तो अभी क्या करना है? अभी जो शेड्यूल नंबर नोट नंबर 1 का है वो हम क्या करेंगे? नोट नंबर 1 का है जो प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज, उसका टोटल यहां लिख देंगे, राइट। तो नोट नंबर 1 हम क्लोज करते हैं और उसका टोटल भी कितना होता है? यही टोटल होता है 2,18,377। और वो कहाँ लिखेंगे? हम यहाँ प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी पीएनएल में लिखेंगे, और यहाँ मैं लिख देता हूँ नोट 1, नोट नंबर 1, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2,18,377। अभी हम सब क्लोज कर सकते हैं, राइट, अभी हम क्लोज कर सकते हैं। तो कितना आता है? तो ये टोटल करो 5,27,063, राइट, 5,27,063
सॉरी वो जो टोटल आता है, राइट। अभी हाँ ये टोटल आता है। अभी प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर फाइंड करना है, तो ये इनकम है, ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी करेंगे। मतलब क्या हुआ, 7,45,440 में से 5,27,063 माइनस करेंगे तो कितना आता है। तो हमको पता है कि जितना 50% प्रोविजन है तो 2,18,377 ही रहेगा, राइट। तो मैंने ये लिख दिया है वैसे ही, और उसका ये टोटल होगा, ये जो टोटल है अभी टोटल होगा, राइट। तो टोटल करो कितना होता है, तो टोटल होता है 3,19,017, राइट। तो ये हो गया। अभी आया ट्रांसफर करना है, अभी नहीं बोला है, तो विदाउट मतलब एडजस्टमेंट हम बोल सकते हैं कि 25% ऑफ प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व पे। तो ये स्टैट्यूटरी रिजर्व पे 2,18,377 का कितना परसेंट, 25% ले जाएंगे। तो कितना आता है, तो कैलकुलेट करो, 54,594, राइट। तो 54,594 क्या आता है, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व आता है। बाद में 35,5950, तो ये दोनों माइनस करके मतलब जो भी होता है ये टोटल पहले लिख देंगे। कितना टोटल लिख देंगे, 3,19,017 लिख देंगे। और बाकी का जो बैलेंस है ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट लिखेंगे, राइट। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट लिखेंगे। और इसकी सेकंड इफेक्ट देनी बाकी है, राइट, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो पहले चलो ये दे देते हैं कि रिजर्व कितना हमने ट्रांसफर किया, 54,595। तो ये कहाँ आएगा, कंटिंजेंसी सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस में देखो, यहाँ ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ 594 ये प्लस कर दो तो कितना आता है, 1,94,594 आता है, राइट। तो ये सेकंड इफेक्ट, डोंट फॉरगेट टू गिव सेकंड इफेक्ट। तो ये सेकंड इफेक्ट आ गई, डिविडेंड टैक्स और सबकी सेकंड इफेक्ट आ गई। अभी 3,19,017 में से ये तीनों माइनस करना है और बाकी का जो है वो बैलेंस शीट में ले जाना है। तो कितना आता है, चलो माइनस करो। तो ये माइनस करने के बाद 2,23,000, फिर से लिखता हूं, थोड़ी गड़बड़ी हो गई, 2,23,473 आपका आता है। देखो ये इतना 2,23,473, राइट। तो ये कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट में। तो इसकी इफेक्ट आएगी, ये कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट में, रिजर्व सरप्लस में, राइट। तो राइट डाउन हियर बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट फ्रॉम बैलेंस शीट कितना आता है, 2,23,473, राइट। ये हो जाने के बाद अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सब जो टोटल है वो अभी टोटल 1 बाय 1 टोटल करेंगे। चलो कैपिटल का कितना टोटल करेंगे, तो 35, ये तो ध्यान में नहीं लेंगे, तो 35 लाख है, राइट, 35 लाख है, राइट। अभी रिजर्व एंड सरप्लस का तो 4 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,94,594 प्लस 2,23,473, टोटल कितना आता है, टोटल आता है 9,38,067। अगर गलत है तो बोलना, क्या बोल भी नहीं सकते क्योंकि आप सुन सकते हो, अभी ऑनलाइन क्लास होता तो बोल सकते, कोई बात नहीं। चलो इसका टोटल करो, 1,82,57,772, ये हो गया। अभी बोरोइंग्स का टोटल यही है तो मैं यही लिख दूंगा, राइट। नेक्स्ट 2 लाख प्लस 77,788 प्लस 2,18,000 प्लस 535,000 एंड सब मिला के कितना होता है, राइट। ये पॉज करके आप टोटल करके बाद में मेरे साथ कैलकुलेट कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो, राइट। तो 5,37,115, राइट। नेक्स्ट है, ये है कैश ऑन हैंड। कैश ऑन हैंड 16,40,648, राइट। ये कैश ऑन हैंड भी हो गया।
चलो अभी बैलेंस विद अदर बैंक, कितना बैलेंस है हमारे पास? 2,40,000, 24 लाख 2,50, राइट, 250, राइट। और बाद में तो यही होगा, तो ये टोटल मैं ऐसे ही कर देता हूं, राइट। यहाँ कितना होता है? तो 171,97,040, राइट। तो 1,71,97,040 आता है एडवांसिस। इतना सारा रुपया सबको दे दिया है, कोई बात नहीं, चलो दे दिया तो दे दिया। अभी क्या हम टोटल ही करेंगे, तो 4,60,520, राइट। हो गया, देख लेना ये सही है या गलत है। नेक्स्ट जो टोटल है 1,246, राइट, अदर एसेट्स, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी तो है नहीं, राइट। तो अभी क्या करेंगे, इंटरेस्ट अर्न वो तो ऑलरेडी हमने कर दिया है, तो ये सब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे कहाँ? बैलेंस शीट में। अभी मतलब अभी कटोकटी आ गई, कटोकटी मतलब देख लेना होता है कि नहीं होता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, कोई बात नहीं, कर देते हैं 35 लाख, तो 35 लाख यहाँ 4,38,067 लिख दिया है। 1,82,00,000 25,000 52,772 देख के लिखना। और 5 लाख है, और फिफ्थ वाला जो है 55,37,115 टोटल कितना है मैं बाद में करूंगा, क्योंकि कुछ गड़बड़ी होती है तो मैं चेंज कर दूंगा और एडजस्टमेंट्स निकाल के फाइनल वही कर दूंगा जो होता है। तो 16,40,648 वो कर दिया है। सेवंथ वाला 2,40,000 सॉरी 24 लाख है ना, 2,250 है, 250 मैं अच्छी तरह से लिख लेता हूँ, आप भी अच्छी तरह से ही लिखना, 2550, राइट। एट्थ जो होता है इन्वेस्टमेंट्स 2,02,6250 मतलब ज्यादा है, 20,26,000, राइट, 20,26,250 फिक्स एसेट्स। और बाद में एडवांसिस 1,71,97,040 है। 10th 4,60,480 है। एंड अदर एसेट्स 1,246 ही है। अभी टोटल करके देखो, टोटल आता है कि नहीं, राइट। टोटल आ जाता है तो ठीक है, नहीं आ जाए तो हम लिख ही देते हैं, राइट। 2,37,27,954 और यहाँ भी 2,37,27,954 टोटल आ गया है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में कुछ है नहीं तो नहीं लिखेंगे, ये टोटल आ गया, मतलब कि हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है, राइट। तो ये मैंने चेंज करवाया है, वो ध्यान में रखना, ये करने के बाद ही ये टोटल आएगा। अगर ये नहीं है तो दो एडजस्टमेंट नहीं होंगे तो आपका आंसर अलग आ सकता है। तो मतलब मेरी साड़ी से तेरी साड़ी सफेद कैसी, वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सफेद होने के लिए ये रिन पाउडर हमने यूज किया है, मतलब हमारा ज्यादा सफेद है, ज्यादा अच्छा टोटल आ गया है, नो प्रॉब्लम। चलो ये आई होप कि ये आपको आ गया होगा, ओके। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। टिल देन गुड बाय।